Hello students, today we will read about the third chapter, that is synthetic fibers and plastics. Okay, this is the class 8th chapter. So today we will discuss it, synthetic fiber and plastics. So let's start. First of all, introduction of synthetic fiber and plastics. Students, the synthetic fibers on the other hand are made by human beings. That is why these are called synthetic or man-made. So it is clear here, the synthetic means man-made things, are the things which are made by the human beings are called synthetic. A synthetic fiber is also a chain of small units joined together. Each small unit is actually a chemical substances. Many such small units combine to form a large single unit called a polymer. So it is clear here that a synthetic fiber is made up of small units, and when small units join together, it forms, these small units are the chemical substances. In other words, we can say these small units are called chemical substances, and many such small units combine to form a large single unit, that is called a polymer. So what is polymer? Polymer is a substance which are formed from small units. When combined to form a large single unit, it is called a polymer. Types of synthetic fibers. So synthetic fibers are three types: rayon, nylon, and polyester and acrylic. So let's start one by one. First of all, rayon. Students, rayon are the fabrics obtained from silk fiber. Was very costly, but its beautiful texture fascinated everybody. Attempts were made to make silk artificially. Towards the end of the 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. So fabric obtained from silk fiber was very costly, but its beautiful texture fascinated everybody. Attempts were made to make silk artificially towards the end of the 19th century. Scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. Okay, so it is clear that rayon have the similar property that of silk. Such a fiber obtained by chemical treatment. Rayon is obtained from a chemical treatment of wood pulp. So it is important here, wood pulp. It is obtained from wood pulp. This fibers was called rayon or artificial silk. Rayon or artificial silk. So another name of rayon is artificial silk. Although rayon is obtained from a natural source like wood pulp, yet it is a man-made fiber. It is cheaper than silk and can be woven like silk fiber. ये रेयन वुड पल्प से ऑब्टेंड होता है, बट ये मैन मेड फाइबर्स होते हैं, एंड इट इज़ चीपर दैन सिल्क एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर. ये जो आपका नेचुरल सिल्क है उससे चीपर होंगे, उससे सस्ते होंगे, एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर. और जैसे सिल्क फाइबर होता है, पूरी करैक्टरिस्टिक्स आपकी ये सेम रखते हैं. It can also be dyed in a rayon can also be dyed in a wide variety of colors. Rayon is mixed with cotton to make bedsheet
और मिक्स्ड विद वूल टू मेक कारपेट्स। सो रेयॉन को अगर हम कॉटन के साथ मिक्स कर दें तो ये बेडशीट बनाने में, और मिक्स्ड विद वूल, अगर हम इसको वूल के साथ मिक्स कर देंगे तो ये कारपेट्स बनाने में इनका यूज़ होता है। और रेयॉन को हम बहुत सारे कलर में डाई भी कर सकते हैं, वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेयॉन। Second, nylon. Nylon is another man-made fiber. It is also man-made fiber. In 1931, it was made without using any natural raw material from plant or animals. It was prepared from coal, water, and air. It was prepared from coal, water, and air. इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। ये पहला फुली सिंथेटिक फाइबर्स था। कौन सा? नाइलॉन। तो नाइलॉन भी मैन मेड फाइबर्स होता है। ये बिना किसी नेचुरल रॉ मटेरियल के, जैसे प्लांट्स या एनिमल्स के, प्रिपेयर्ड किया जाता है। एंड इट वॉज प्रिपेयर्ड एक्चुअली फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। और ये फुली सिंथेटिक फाइबर्स की कैटेगरी में आते हैं। नाइलॉन फाइबर इज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। कैसे होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे, इलास्टिक नेचर के होंगे, लचीले होंगे और हल्के वेट के होंगे। इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश, सो इट बिकम्स वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। ये चमकीले होते हैं, इनको आसानी से हम वॉश कर सकते हैं। सो इट बिकम्स वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। सो इनका यूज़ क्लॉथ्स मेकिंग में बहुत ज़्यादा होता है। We use many articles made from nylon such as socks, ropes, tents, toothbrushes, car seat, belts, sleeping bags, curtains etc. इन सब में हम नायलॉन का यूज़ करते हैं, या नायलॉन से ये सारी चीज़ें बनी होती हैं। नायलॉन कैरेक्टरिस्टिक्स। नायलॉन फाइबर इज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, लाइट। वही सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अभी हमने बताया, ये नायलॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये लस्ट्रस होगा, इजी टू वॉश हो कर सकते हैं, आसानी से हम इसको धुल सकते हैं। और सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रश एट्सेट्रा बनाने में इनके यूज़ होते हैं। नायलॉन इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है पैराशूट्स किस सिल्क से या किस फाइबर से बनाया जाता है? तो नायलॉन से बनाया जाता है। एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, जो रॉक क्लाइंबिंग में यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रोप्स यूज़ होती हैं वो नायलॉन की बनी होती हैं। नायलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। जो नायलॉन का थ्रेड होता है एक्चुअली में ये स्टील वायर से भी स्ट्रॉन्गर होता है, मजबूत होता है। नेक्स्ट, पॉलीएस्टर एंड एक्राइलिक। Polyester is another synthetic fiber. Fabric made from this fiber does not get wrinkled easily. It remains crisp and easy to wash, so it is quite suitable for making dress material. You must have seen people wearing nice polyester shirts and other dresses. Terylene is a popular polyester. It can be drawn into very fine fibers that can be woven like any other yarn. पॉलीएस्टर एक अनदर टाइप का सिंथेटिक फाइबर है, और जो पॉलीएस्टर के जो भी क्लॉथ्स होते हैं वो आसानी से रिंकल नहीं होते हैं। जैसे कि कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो आप उनको बिना प्रेस किए आप नहीं पहन सकते हो, तो ये इजीली रिंकल नहीं होते हैं और ऐसे आप इजीली इनको वॉश कर सकते हैं। सो ये ड्रेस मटेरियल बनाने में ज़्यादा इनकी यूजेस हो रहे हैं आजकल। एंड आप आजकल लोगों को देखा होगा आप लोगों ने कि ये जो पॉलिस्टर के शर्ट्स आते हैं या ड्रेसेस आते हैं वो ज़्यादा लोग पहनते हैं। और टेरिलिन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर। Terylene is example of a popular polyester. It can be drawn into very fine fibers that can be woven like any other yarn. इसको आसानी से हम ड्रॉन कर सकते हैं, खींच सकते हैं, जिससे ये आप आसानी से इसको
यार्न बनाने में इनका यूज़ होता है। नेक्स्ट, पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक, PET. PET is very familiar form of polyester. It is used for making bottles, utensils, films, wires and many other useful products. PET एक बहुत ही यूज़फुल या फेमिलियर पॉलिएस्टर है और इसका यूज़ बॉटल्स, यूटेंसाइल्स, फिल्म्स, वायर्स और बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। सो PET स्टैंड फॉर पॉलीइथाइलिन टेरेप्थलेट। पॉलीइथाइलिन टेरेप्थलेट। We wear sweaters and use shawls or blankets in the winter. Many of these are actually not made from natural wool, though they appear to resemble wool. बहुत सारी जो स्वेटर्स और ब्लैंकेट्स हम ठंड में क्या कहते हैं यूज़ करते हैं, वो ऐसा लगता है कि वो वूल जैसे होते हैं, बट दे आर नॉट एक्चुअली वूल. These are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic. वो another synthetic fibers obtained होते हैं दूसरे प्रकार के, जिसे हम acrylic कहते हैं. The wool obtained from natural source is quite expensive. जो natural source के wool obtained होते हैं वो ज़्यादा थोड़ा खर्चीले होते हैं, expensive होते हैं, whereas cloths made from acrylic are relatively cheap. लेकिन acrylic के जो भी cloths हैं वो relatively cheap होते हैं नेचुरल wool से या नेचुरल सोर्सेस से. They are available in a variety of colors like this you can see here. Synthetic fibers are more durable and affordable, which makes them more popular than natural fibers. So students, synthetic fibers are more durable and affordable. काफ़ी ज़्यादा टिकाऊ होते हैं और आप ज़्यादा लेस एक्सपेंसिव हम कह सकते हैं. दे आर लेस एक्सपेंसिव नेचर, विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल fibers. Characteristics of synthetic fibers. So synthetic fibers possess unique characteristics which make them popular dress material. They dry up quickly, are durable, less expensive, readily available and easy to maintain. So जल्दी से ये सूख जाएंगे, ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, ज़्यादा टिकाऊ होते हैं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, रेडली अवेलेबल, हर जगह ये उपलब्ध हो जाते हैं, इजी टू मेंटेन, हम इनको इजी वॉश कर सकते हैं और इजी टू मेंटेन कर सकते हैं, मीन्स इनको हम अच्छे से हैंडल कर सकते हैं. Plastics also a polymer like the synthetic fiber. All plastics do not have the same type of arrangement of units. In some it is linear, whereas in other it is cross-linked. Plastics articles are available in all possible shapes and sizes. So students, plastics is also a polymer. प्लास्टिक भी आपका पॉलीमर कैटेगरी में आता है, जैसे सिंथेटिक फाइबर्स आते हैं. और सभी प्लास्टिक्स जो है सेम टाइम के सभी प्लास्टिक्स में अरेंजमेंट नहीं होता. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये लीनियर है और ये क्रॉस लिंक्ड है, तो यहाँ पे सेम टाइप का अरेंजमेंट हर प्लास्टिक्स में आपको कॉमनली नहीं देखने को मिलता है. हर जगह अलग अलग अरेंजमेंट हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे लीनियर और यहाँ पे क्रॉस लिंक्ड. और ये प्लास्टिक्स के जो भी आर्टिकल्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं सभी शेप्स में, सभी साइज. द फैक्ट इज़ दैट plastic is easily moldable, means can be shaped in any form. हम उनको मोल्ड कर सकते हैं, मीन्स उनको कोई भी शेप दे सकते हैं. जैसे प्लास्टिक का ये डिफरेंट शेप दिया हुआ आर्टिकल्स है. प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स. दैट इज़ वाई इट फाइंड्स सच अ वेराइटी ऑफ यूजेस. सो प्लास्टिक का यूज़ हम बहुत जगह कर सकते हैं. उन्हें रिसाइकल्ड कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं. सो मेल्ट कर सकते हैं, उनको रोल्ड कर सकते हैं, शीट में बना सकते हैं, उनका वायर बना सकते हैं. सो प्लास्टिक्स
is find such a variety of uses. When we add hot water in a plastic bottle, it gets deformed. Such plastics which get deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastic. वो प्लास्टिक जो easily bent हो जाएं या deformed हो जाएं और हीट करने पे या easily bent हो जाएं हीट करने पे उन्हें हम थर्मोप्लास्टिक्स कहते हैं. जैसे पॉलीथीन एंड PVC के प्लास्टिक्स आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक. सो इट इज़ क्लियर. प्लास्टिक आपके जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, थर्मो सेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक. तो थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होते हैं जिनको इजीली वो डिफॉर्म हो जाए हीट करने पे, उन्हें हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक्स. ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस कांट बी सॉफ्टेंड ऑन हीटिंग आर बाई हीटिंग, दैट दिस इज़ कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. वो प्लास्टिक जिनको हीट करने पर वो मोल्ड नहीं हो सकते एक बार में या सॉफ्टेंड नहीं हो सकते हैं, उन्हें हम थर्मोप्लास्टिक्स कहते हैं. जैसे इसके एग्जांपल हैं आपके बैकेलाइट और मेलामिन. सो यहाँ पे रिमेंबर करना है, आपको फोकस करना है कि बैकेलाइट और मेलामिन ये आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में आएंगे बिकॉज दे कांट बी सॉफ्टेंड बाई हीटिंग. Bakelite students, what is bakelite? Bakelite is a poor conductor of heat and electricity. It is used for making electrical switches, handles of various utensils. So switches बनाने में, electrical switches, handles, various utensils के बनाने में bakelite का यूज होता है, क्योंकि bakelite एक poor conductor होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास हो सकती है, नहीं पास होती है. नेक्स्ट प्लास्टिक इज मेलामिन. Melamine is a versatile material. It resists fire and can tolerate heat better than the other plastic. Versatile होता है नेचर का और फायर को रेजिस्ट करता है, टॉलरेट करता है. एंड इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर. तो फ्लोर टाइल्स में बनाने यूज़ होता है इसका, किचन वेयर बनाने में और फैब्रिक्स बनाने में जो कि फायर को रेजिस्ट कर सके, जैसे कि ये सारे यूटेंसाइल्स मेलामिन के बने हुए हैं यहाँ पे. प्लास्टिक्स एज मटेरियल ऑफ चॉइस. सो बीइंग लाइटर एज कंपेयर्ड टू मेटल्स, plastics are used in cars, aircraft, spacecraft too. The list of the is endless if we start counting articles like slipper, furniture and decoration piece etc. प्लास्टिक्स जो होते हैं वो लाइटर होते हैं, इसलिए मेटल की जगह पे ज़्यादातर प्लास्टिक्स का यूज़ हम कार्स में, एयरक्राफ्ट्स में या स्पेस क्राफ्ट्स में कर रहे हैं. नेक्स्ट प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव. प्लास्टिक metal like iron get rusted when left exposed to moisture and air, but plastic do not react with water and air. They are not corroded easily. That is why they are used to store various kinds of material including many chemicals. जैसे कि मेटल आपके मेटल में रस्टिंग हो जाती है जब इनको हम एक्सपोज या खुला छोड़ते हैं मॉइस्चर और एयर के कॉन्टेक्ट में जब ये आते हैं, लेकिन प्लास्टिक्स आपका वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, एयर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, जिससे इसमें कोरोजन या रस्ट नहीं लगते. इसीलिए प्लास्टिक्स का यूज़ हम बहुत सारे वेरियस काइंड्स मटेरियल को स्टोर करने में और केमिकल्स को भी स्टोर करने में हम यहाँ तक इसका यूज़ कर रहे हैं. प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. स्टूडेंट्स, प्लास्टिक्स आपका लाइट वेट का होता है, लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है. इसीलिए हम वेरियस पर्पसेस में प्लास्टिक्स को यूज़ करें, जैसे केमिकल को स्टोर करने में, बहुत सारे फूड आइटम्स को स्टोर करने में, क्योंकि ये नॉन कोरोसिव भी होता है, इसमें कोरोजन नहीं होता, रस्ट नहीं लगता. पुअर कंडक्टर होता है प्लास्टिक्स. यू कैन सी हियर प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स बिकॉज हीट और इलेक्ट्रिसिटी इसमें से नहीं पास हो सकती. दिस इज़ वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग. इसीलिए जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं वो प्लास्टिक की कवरिंग के थ्रू उसको रैप किया जाता है. एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक. जो घर में स्क्रू ड्राइवर्स होता है उसकी भी जो हैंडलिंग होती है, हैंडल होता है, ये पूरा प्लास्टिक्स का होता है, जिससे जो है ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास हो सकती है. एंड हैंडल्स ऑफ फ्लाइंग पैन्स, घर में बनाने वाले जो पैन्स हैं ये भी प्लास्टिक्स के होते हैं, जिससे वो हीट जल्दी नहीं होते. बायोडिग्रेडेबल
and non-biodegradable. Biodegradable means the things which are degraded by the help of bacteria or microorganism. वो जो माइक्रोऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया थ्रू जो डिग्रेड हो जाए, ख़त्म हो जाए, वो बायोडिग्रेडेबल में आते हैं. जो नहीं होते हैं उन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं. तो यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे. बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है. अ मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाई बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल, एंड अ मटेरियल विच नॉट इजिली डिकम्पोज्ड बाई नेचुरल प्रोसेस इज नोन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल. जो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू मीन्स बैक्टीरिया थ्रू डिग्रेड हो जाए उन्हें बायोडिग्रेडेबल, और जो नेचुरल प्रोसेस मीन्स बैक्टीरिया थ्रू डिग्रेड ना हो सके या डिकम्पोज ना हो सके उन्हें हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल. प्लास्टिक्स एंड द इन्वायरमेंट, आप यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. जैसे कि टाइप्स ऑफ वेस्ट है, अप्रॉक्सीमेटली टाइम कितना उसको डिजनरेट ख़त्म होने में लगेगा, और नेचुरल क्या नेचर का मटेरियल उससे कैसा है, बायोडिग्रेडेबल है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है. जैसे पेपर की बात करते हैं तो पेपर 10 to 30 डेज़ में आपका डिग्रेड हो जाएगा. कॉटन क्लॉथ्स को डिग्रेड होने में 2 to 5 मंथ लगते हैं. वुड को 10 to 15 ईयर्स लगते हैं. वूलन क्लॉथ्स को अबाउट 1 ईयर लग जाते हैं. प्लास्टिक बैग्स को यहाँ तक सेवरल ईयर उसको डिजनरेट होने में लग जाता है, इसलिए ये नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में आते हैं. तो यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. सो प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट की बात करते हैं. तो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 4R प्रिंसिपल: रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल एंड रिकवर. डेवलप्स हैबिट्स विथ आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, क्योंकि हमको किस प्लास्टिक्स का रीयूज़ करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए, रिड्यूस कम से कम यूज़ करना चाहिए, और उसको रिकवर करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि इन्वायरमेंट में प्लास्टिक्स ज़्यादा ना हो पाएँ और ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट ना हो. सो प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट की बात करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना चाहिए, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज़ और ऑन द रोड. टेक अ कॉटन कैरी बैग और जूट बैग while going for shopping, and try to minimize the use of plastic material. Use a steel लंच बॉक्स instead of a plastic one. आपको कहीं भी प्लास्टिक इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, और आपको कैरी बैग ले जाना चाहिए जूट का जब भी आप शॉपिंग करने जा रहे होते हैं. और ट्राई टू मिनिमाइज़ द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल. कैसे, आप जैसे कि जो टिफ़िन बॉक्स लेके जाते हैं, लंच बॉक्स लेके जाते हैं, आपको स्टील का लंच बॉक्स लेके जाना चाहिए, ना कि प्लास्टिक बैग्स में कोई आइटम, फूड आइटम रख के जाना है, जिसके थ्रू हम रिड्यूस, रिसाइकल, रिकवर और जो भी प्रोसेसेस हैं इसको हम कर सकते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. आज आपका ये 3rd चैप्टर साइंस का यहाँ पे ख़त्म होता है. सो थैंक्स.